Welcome learners. Welcome in social science class. Dear learners, today through this video we are going to learn about NCERT Book of Class 7 Subject History Lesson number 2 New Kings and Kingdoms. Dear learners, before going to start our lesson, let's see what are the objectives to learn about this lesson. These are the objectives of this lesson. Dear learners, this lesson helps us to understand or to get an idea about the political development during 700 and 1200 century. Trace the pattern of military conquest of Gurjar Pratiharas, Rashtrakutas, Palas, Chahmans and Ghaznavids. Develop an understanding of the connections between political and economic processes. In last, we are going to discuss a case study of Cholas and their agrarian expansion in the Tamil Nadu region. So these are the objectives, and we will cover this lesson under the following headings. Introductory part, the emergence of new dynasties, administration in the kingdoms, prasastis and land grants, warfare for wealth, and a closer look about the Cholas. In the closer look of the Cholas, we are going to discuss about the territory of Cholas, their temples and bronze sculptures, agriculture and irrigation, administration of the empire. And in last, we discuss exercise and a worksheet also given by me. Before we proceed further, let's recall meaning of some keywords which help us to understand our lesson effectively. So these are the keywords. First one is dynasty. Dear learners, dynasty means a family of rulers who rule over a country for long period of time. Second word is kingdom. Any country which ruled by a monarch is considered to be a kingdom. Monarch can be a king or a queen. Third word is empire. Dear learners, an empire is a large kingdom. Next one is prasastis. Prasastis are glowing praises of rulers. These are special kinds of inscriptions. Next word is assert. Assert means to behave or speak in a confident and forceful manner. Embankment, an artificial ridge of soil or rock built by the side of a river and designed to try to prevent the river from flooding during time of high water. नदी में बाढ़ आ जाए उससे पहले उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके किनारों पे सोयल की हेल्प से या फिर रॉक्स की हेल्प से रिज बना देते हैं, सो दैट कि अगर हाई वाटर हो जाए तो फ्लड की कंडीशन क्रिएट ना हो और हम बच जाए. उसकी जो बैंक होते हैं रिवर्स के, उनको हाई कर दिया जाता है एम्बैंकमेंट में. नेक्स्ट वर्ड इज ओवरलोड. अ पर्सन हु इज लॉर्ड ओवर अनदर्स नॉन एज ओवरलोड. जो राजा भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है
और अ किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा या फिर एक राजा जो है उसको हम ओवरलॉर्ड कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वैलिएंट. वैलिएंट मीन्स करेज, हिम्मत, साहस, ब्रेव. नेक्स्ट वन इज विक्टोरियस वॉरियर्स. विक्टोरियस वॉरियर्स मीन्स brave soldiers or fighters. Warfare, military operations between enemies. जब मिलिट्री जो है दो तरफ की मिलिट्री एनिमीज़ हों और वो फाइट करते हैं तो वो वारफेयर कहलाता है. नेक्स्ट वन इज़ स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मीन्स इम्प्रेसिव और ग्लोरियस. नेक्स्ट इज़ कनक्यूर. कनक्यूर मीन्स to gain and acquire something by force. As you know that in ancient time kings क्या करते थे, fight करते थे to conquer another's territory. किसी और के राज्य के हिस्से को जीतने के लिए जीता जाता था और उसको conquer किया जाता था, उसकी property को. And the last word is bureaucracy. Bureaucracy is a system of government for controlling and managing a country. और ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट है तो यहाँ पर ही ब्यूरोक्रेसी है. इन मेडिवल पीरियड किंग्स जो थे उनका भी अपना जो है एक सिस्टम होता था. उनके अपने सामंस होते थे या मिनिस्टर्स होते थे जिनसे वो डिस्कस करके राज्य के अंदर कोई भी काम करते थे, तो उनकी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती थी. So these are the keywords. These must be helpful to you. Now it's time to discuss our lesson. And before going to discuss, dear students, I just want to tell you that in history there are some terms which are difficult to pronunciate. So please, you must focus on the pronunciation of these words. Dear learners, between 7th and 12th century, many new dynasties were emerged on Indian subcontinent. For example, Chahmans, Gurjar Pratiharas, Chandelas, Parmars, Palas, Rashtrakutas, Cholas, Cheras, Pandyas. I know these terms may be hard for you to pronunciate. Let's again repeat these names with their location. Here on maps, Chahmans, Gurjar Pratiharas, Chandelas, Parmars, Rashtrakutas, Cholas, Cheras, Pandyas and Palas. With the help of this map, you can compare and identify the present day states where these dynasties exercise their control. If we talk about Rashtrakutas, सो वो कहाँ पर एक्सरसाइज करते थे, दैट मीन्स उनकी टेरिटरी कहाँ पर थी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. लाइक राष्ट्रकूटास यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अदर डायनेस्टीज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल पालाज रूल्ड ओवर बंगाल, वेयर एज गुर्जर प्रतिहारा रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, वेयर एज चोलाज रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, whereas Cheras ruled over Kerala. Now we are able to find out or identify the area of these new dynasties, but the question is how these new dynasties were emerged. बनती कैसे थी ये new dynasties? Let's see. Dear students, by the 7th century there were big landlords and warrior chiefs in different regions of the subcontinent. भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत बिग रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे या फिर बड़े वॉरियर्स चीफ होते थे जिनको एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सामंताज और सबॉर्डिनेट्स.
राजा इन बिग लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को अपने सामंत बना लेते थे एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स। और राजा ये एक्सपेक्ट करता था कि सामंत उसके लिए गिफ्ट लेकर आए एंड प्रोवाइड दैम विद मिलिट्री सपोर्ट। और जब राजा को मिलिट्री सपोर्ट की नीड हो तब सामंत उसको वो मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाए। ये तो बात हुई कि किंग क्या एक्सपेक्ट करते थे सामंत से, बट नाउ वी सी कि सामंत क्या करते थे इसके रिजल्ट्स में। एज सामंत्स गेन्ड पावर एंड वेल्थ they declared themselves to be Mahasamanta and Mahamandaleshwara and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. That means सामंत जैसे जैसे पावरफुल होता जाता था, वेल्दी होता जाता था, तो वो अपने आप को महासामंतास और महामंडलेश्वरास इस तरीके के अपने आप को टाइटल्स जो है वो देता था, जिसका मतलब होता था अ ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ का वो सामंत है उसका वहाँ का अपने आप को वो महामंडलेश्वर जो है अनाउंस कर देता था। और कई बार तो क्या करते थे, ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे ये सामंतास कि ये अपने आप को राजा से अलग कर लेते थे और अपने आप को ही राजा बना देते थे। ऐसे ही एक सामंत का एग्जाम्पल हमारी बुक में गिवन है। One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan। डेक्कन जो है वो हम अपने साउदर्न इंडिया को बोलते हैं। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो पहले चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे। तो चालुक्यास जो है ये डायनेस्टी थी और इसके सबॉर्डिनेट या सामंत जो थे वो राष्ट्रकूटास थे। In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya's overlord। और 8th सेंचुरी में क्या हुआ, दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूटास का चीफ था, उसने अपने चालुक्यास को, अपने किंग को ओवरथ्रू कर दिया, उसको साइड कर दिया और खुद को राजा अनाउंस कर दिया। Here one thing is important and that is कि दंती दुर्ग जो था वो क्षत्रिय नहीं था एंड एट दैट टाइम क्षत्रिय जो था वही राजा बन सकता था। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, जिसका मतलब होता है गोल्डन वॉम्ब। डियर लर्नर्स, नाउ वी लर्न व्हाट इज हिरण्यगर्भा and how it can performed and what is the meaning of this ritual. So this ritual was performed with the help of the Brahmins। ब्राह्मण की हेल्प से ये रिचुअल होती थी and it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriyas even if he was not one by birth। अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल, ये जो रिचुअल जो थी इसमें यज्ञ होता था और उसके बाद ये ब्राह्मण की हेल्प से होता था और उसके बाद क्या होता था, जो क्षत्रिय नहीं भी है उसको क्षत्रिय बना दिया जाता था। कहते थे कि ये रीबर्थ हो गया है और अब ये क्षत्रिय बन गया है। तो राष्ट्रकूटास के साथ ऐसे ही हुआ था। वो स्टार्टिंग से क्षत्रियास नहीं थे बट उन्होंने अपने चालुक्यास को, अपने ओवरलॉर्ड्स को सत्ता से हटा दिया था, किंग की जो पोजीशन थी उससे हटा दिया था और ख़ुद को किंग डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट उन्होंने हिरण्यगर्भा नाम के रिचुअल को परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स और इससे वो क्या बन गए, क्षत्रियास बन गए। बेटे आज जैसे हम रिजिड है ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, मेडिवल जब पीरियड था उस टाइम पे इतना रिजिड नहीं था। ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, जो जैसा काम कर रहा होता था उसको वैसे ही वो बन जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्राह्मण का बेटा फार्मर बन गया है तो उसको वो फार्मर कहलाता था। अगर एक क्षत्रिय है उसका बच्चा अगर वो वेदों का ज्ञान रखता था और वो ब्राह्मण के काम करता था तो वो ब्राह्मण बन जाता था। ये हमने 6th क्लास में अपना सीखा था। आई होप कि आपको ये सब रिमेंबर होगा। Besides this Rashtrakuta, here are some more examples also given in our book. Men from enterprising families, ऐसी families जो
व्यापारी फैमिली होती हैं या उद्यमी फैमिली होती हैं जो व्यापार करते हैं, तो ऐसी फैमिलीज़ में से भी लोग जो हैं वो राजा बने हैं. सो इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज़ देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स. उन्होंने राजा बनने के लिए अपनी मिलिट्री स्किल्स जो है, अपनी युद्ध नीति का इस्तेमाल किया है. फॉर एग्जाम्पल्स कादम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहाराज हरिचंद्रा. ये दोनों जो पर्सन थे ये ब्राह्मण्स थे एंड दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस. और इन्होंने अपनी इस ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को जो इनके दादा परदादा और पिता जो है करते आ रहे थे उसको इन्होंने गेव अप कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया. एंड टुक टू आर्म्स, और उन्होंने हथियार उठा लिए. एंड सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली. और इन्होंने अपने जो कर्नाटका और राजस्थान में जो है अपने सक्सेसफुल किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया. सो यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोली है कि ऐसा नहीं था कि जो क्षत्रिय के घर जिसने जन्म लिया है वही क्षत्रिय बन सकता था. अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस जो थे वहाँ पर कास्टिज्म डिसाइड होता था. सो इन दीज इमेज यू कैन सी कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स ये जो रिचुअल्स थे इनको परफॉर्म किया जाता है. और आफ्टर द completion of the ritual, the person who did this ritual can become a kshatriya. क्षत्रियास जो होते थे वो वॉरियर्स होते थे और वो राजा बनते थे. सो इस तरीके के रिचुअल्स के बाद जो क्षत्रियास के घर नहीं पैदा हुआ है वो भी क्षत्रिय बन सकता था. सो इससे हमें पता चल गया कि कैसे न्यू डायनेस्टीज़ जो हैं वो एमर्ज हो रही थी धीरे धीरे. नाउ the question is how administration was governed in these kingdoms. Dear students, these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Dhiraj, त्रिभुवन चक्रवर्तिन. ये जो नए राजा बनते थे ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े बिग टाइटल्स जो थे वो देते थे सो दैट कि इनकी रेपुटेशन जो है वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. और ये इस तरीके के महाराजा धीराज दैट मीन्स राजाओं का भी राजा, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती तीन लोकों का स्वामी. ये तीन लोग कौन से होते हैं? आकाश, धरती एंड पाताल लोक. तो इन तीनों का स्वामी, इस तरीके के ये टाइटल्स जो थे ये अपने आप को देते थे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए. बट इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड power with their samantas as well as with association of peasants, traders और brahmins. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ किंग बन गए तो उसके बाद उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं था. वो अपने जो यूनियन ऑफ पीजेंट्स होती थी या फिर ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स और अपने सामंतास की हेल्प लेते थे टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजा को राज्य चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसको रिसोर्सेज की भी नीड होगी. सो वो इनकम उसे कहाँ से मिलती थी? रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स सच एज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस. उस एरिया में रहने वाले जो आर्टिशंस होते थे या फिर किसान होते थे या फिर कैटल रियर जो करते थे वो सारे प्रोड्यूसर हुए. सो उनको क्या किया जाता था? परसुएड किया जाता था, कंपेल किया जाता था टू सरेंडर सम पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड. जो कुछ भी वो कमाई कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो राजा को देने के लिए कंपेल किया जाता था. रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ट्रेडर्स से भी जो व्यापारी होते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था. सो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था. Here is an example of an inscription which is found in the territory of Cholas. So the inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu referred to more than 400 terms for different kind of taxes. करीबन 400 जो है different तरीके के taxes होते थे. The most frequently mentioned tax is VATI. VATI जो tax है वो सबसे ज़्यादा famous था. टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर. वैटी जो था वो कोई कैश नहीं होता था जो से लिया जाता था, बट ये जो होती थी ये एक फोर्स्ड लेबर होती थी, ज़बरदस्ती काम करवाना, ये वैटी कहलाता है.
एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू। सो कुल यहाँ पर 3 टैक्सेस जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो थे, एक तो वैटी, सेकंड इज़ कदमई और थर्ड वन इज़ लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज, हाउस बनाने के लिए उसके ऊपर जो छत डाली जाती है उसका भी टैक्स होता था। एंड द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनाई जाती थी उसका भी टैक्स दिया जाता था। एंड अ सैशे ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता था उसका टैक्स भी किंग को दिया जाता था। ये इस तरीके के कुछ टैक्सेस थे जो इन किंगडम्स के अंदर लिए जाते थे। Here one more question raised, and the question is how these resources were used. जो टैक्सेस ये कलेक्ट हुआ इसको यूज़ कैसे किया जाता था। सो दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, राजा को जो बिल्डिंग बनानी होती थी उसके रहने के लिए या फिर उसको अपनी सेना रखनी है तो उसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट उसको बनानी होती थी उसमें इसको यूज़ किया जाता था। एज वेल एज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, राजा अपने लिए बहुत बड़े टेम्पल्स और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाते थे, उसमें इन पैसों को यूज़ किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स जब होते थे तो वहाँ पे भी रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत होती थी। कभी वेपन्स उनको बनाने होते थे, अपनी आर्मी के लिए उनको फूड अवेलेबल करवाना होता था, तो इसके लिए भी उनको बहुत सारी वेल्थ की ज़रूरत होती थी। नाउ द क्वेश्चन इज़ who were collected revenue. So the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and the position were often hereditary. अच्छे परिवारों से या जो ऐसे परिवार थे जिनकी पोजीशन सोसाइटी में हाई है उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता था और ये हेरिडिटरी होती थी। दैट मीन्स कि पिता अगर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका बच्चा फिर उसके आगे बच्चे वो इसको कलेक्ट करेंगे। जनरली जो था दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, ये आर्मी के साथ भी ऐसे ही होता था। जो आर्मी में सोल्जर है या फिर सेनापति है किसी हायर पोजीशन पे है तो उस पर उसके बेटे को रख दिया जाता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए किंग्स के जो जानकार होते थे उसके जो क्लोज फैमिली रिलेटिव्स होते थे उनको इस पोजीशन पे रखा जाता था। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शंस अबाउट सम न्यू डायनेस्टीज़, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, कैसे वो इमर्ज हुए, कैसे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद वो क्षत्रिय बन सकते थे, and how with the help of the samantas and the association of peasants or cattle keepers और traders की help से कैसे वो अपने administrations को run करते थे, and how they collected the revenue and how they spent that revenue on the establishment of the buildings, temples or for the armies. Dear students, in the next video we are going to learn about the prasastis and the land grants. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you.